Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Okay. Today's our topic is chapter number 2, peripheral devices. Chapter number 2, peripheral devices. Open your book. Chapter number 2, peripheral devices. What is peripheral devices? What is peripheral devices? A device that is not a part of main processing system. ऐसे डिवाइस जो बिल्कुल भी पार्ट नहीं है मेन प्रोसेसिंग सिस्टम का, बट इट इज यूज्ड विद द कंप्यूटर. बट यूज किसके साथ हो रही है? कंप्यूटर के साथ हो रही है. दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. So in this chapter we can say that what is peripheral devices? A device that is not a part of main processing system but that is used in the computer is called peripheral devices. There are basically two types of peripheral devices. One is internal, second is external. One is internal, second is external. Internal peripheral devices कौन सी होती हैं? Like CD-ROM drive and CDR drive. External peripheral device कौन सी होती हैं? Keyboard, mouse, printer, monitor and scanner. CD stand for compact disc, ROM stand for read-only memory. CDR compact disc readable drive. और external peripheral device में क्या आता है? Keyboard, mouse, printer, monitor, scanner. यानी ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट भी यूज होती हैं, इनपुट भी यूज होती हैं, दैट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. और जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर यूज होती हैं लाइक CD-ROM ड्राइव एंड CDR ड्राइव, दीज आर इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस. एक्सटर्नल डिवाइस जिसके प्लग जिनके पोर्ट्स बाहर साइड पे होते हैं, आउटसाइड होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माउस, स्कैनर, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस. Input device accept data and send it to the CPU. Input devices वो devices हैं जो data को क्या करती हैं? Accept करती हैं to the CPU. The keyboard, mouse, trackball, joystick, graphics tablet, touch screen, light pen, scanner, optical character reader, MICR reader, barcode reader and webcam are input devices. Input devices कौन सी हैं? The devices that accept data and send it to the CPU. The keyboard, mouse, trackball, joystick, tablet, light pen, scanner, OCR, MICR, these all are input devices. What are output devices? Output devices that display information on the screen, that display information and processed by the computer. Visual devices, visual display units or monitor, printers, plotters are output devices. Monitor आपको पता है आपके घरों में भी है जो डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट्स को. प्रिंटर जिसे आप पेज प्रिंट करते हैं. प्लॉटर जैसे कि आपके फ्लैक्स बनते हैं. बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा आर्ट कंपटीशन था, बड़ा सारा फ्लैक्स लगा हुआ था, तो वो किस में बनते हैं? प्लॉटर्स में बनते हैं. डेट आर आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. उसके बाद है बाकी आपको जो ये लेबलिंग है वो मैं आपको लास्ट में आपको इसको डिस्कस करती हूँ. उसके बाद ओपन योर बुक पेज नंबर 14. टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? बिकॉज पेरिफेरल की डिवाइसेस का मतलब होता है जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं, और इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस भी होती हैं. द कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल डिवाइस थ्रू व्हिच वी कैन इनपुट numbers, letters, commands into the computer. Entering data through the keyboard is called manual data entry. जब भी हम कीबोर्ड के अंदर डाटा एंटर करते हैं, that is called manual data entry. There are different types of keys in the keyboard. One is numbers keys, second is alphabet keys, third is numeric keys, fourth is functions keys, arrows keys and special purpose keys या special keys. ठीक है. अल्फाबेट कीज किसके लिए होती हैं? अल्फाबेट से ही आपको समझ आता है कि आपके लेटर्स A से Z तक, स्मॉल b और कैपिटल लेटर्स की. उसके बाद नंबर्स कीज में इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on. These are called numbers keys. Functions keys that are used to perform specific actions
यानी फंक्शंस कीज कौन सी होती हैं, जो एक स्पेसिफिक एक्शंस को क्या कर रही होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं, लाइक F1, F2, F3, F4, F5, F6 and up to so on. Next is numeric keys are set of number keys at extremes right of the keyboard. They are arranged just like the keys on the calculator. जैसे कैलकुलेटर के ऊपर कीज बनी हुई होती हैं 1, 2, 3, ये सारी कौन सी कीज होती हैं, नंबर्स की. न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड टू न्यूमेरिक डाटा. उसके बाद होती है एरोस कीज दैट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. यानी एरोस कीज आपने कीबोर्ड पे देखी होंगी, वो क्या करती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड पे मूव करना हो तो हम लेफ्ट एरो यूज करते हैं, राइट साइड पे हमने यूज करना हो तो राइट एरो, अप हमने यूज करना है तो अप, डाउन अगर हमें जाना है तो डाउन एरो हम यूज करते हैं. उसके बाद स्पेशल कीज टू स्पेशल टास्क. कुछ स्पेशल टास्क को डन करती हैं, लाइक एंटर, स्पेस. These functions never change. ये कभी भी बदल नहीं सकते ये फंक्शंस, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है माउस. नेक्स्ट डिवाइस कौन सी है हमारी, माउस. जैसे आपके सामने क्या है, माउस. माउस इज अ इनपुट डिवाइस. माउस इज अ इनपुट डिवाइस. A mouse is a handheld device. A mouse is a handheld device. That movement of the cursor or pointer on the screen. The scroll wheel on the middle help us to move down on the page. ठीक है, जो दरमियान में हमें ये वाला जो व्हील हमें शो हो रहा है इस माउस का, हमें हेल्प करता है कि हमने किस डायरेक्शन में वर्कआउट करना है, ठीक है. In the middle help us to move and down a page. The mouse buttons are used to point, click and drag object on the screen. यानी हमारी स्क्रीन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन पे. Moving the pointer display is called pointing. Pressing a mouse button and releasing it. जैसे ही आप प्रेस करते हो और उसको रिलीज करते हो, it at once is called clicking. जैसे आपने जैसे प्रेस किया और फौरन आप उसको रिलीज कर रहे हो, this is called clicking. To select an icon screen, we double click the left button. उसके बाद holding down the button on an object, moving the mouse without releasing it, it is called ड्रैगिंग. यानी आप उसको कंटिन्यूसली ड्रैग कर रहे हो पूरे ऑब्जेक्ट्स को उसकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर. उसके बाद है GUI. हमारा बेसिकली हमारे कंप्यूटर जोन है वो क्या है, GUI इंटरफेस है. कौन सा इंटरफेस है, GUI. यानी कलरफुल है, आपको जितने भी आइकन्स हैं वो कलरफुल नजर आते हैं. That are called point and click interface because we can simply point an object on the screen and then click the button on the mouse. Because हम एक क्लिक करते हैं और हमारे सामने क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं. तो GUI का मतलब होता है पॉइंट टू क्लिक, यानी हम चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं और उनको फौरन क्लिक कर रहे हैं और चीज़ें क्या हो रही हैं, डन हो रही हैं. द माउस इज यूज्ड एंड पेन, पेंसिल, पेंट ब्रश, ग्राफिक्स प्रोग्राम टू ड्रॉ पिक्चर्स. यानी हम डिफरेंट थिंग्स को क्या कर सकते हैं, इसमें पॉइंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह मूव कर रहे हैं, उसको क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी माउस. इसके बाद आपकी बुक पे गिवन है वर्ड्स विज. वर्ड्स विज जैसे क्लिक, स्नैप, क्लिक, स्नैप, ड्रैग, पुल, ड्रैग, पुल, पॉइंट, एम, पॉइंट, एम. उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है इनपुट डिवाइस है वो क्या है, जॉयस्टिक. कौन सी डिवाइस है, जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स. आप सब लोग गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे, तो जो आप गेम्स खेलते हैं तो जॉयस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट प्ले इन द गेम्स. इट इज अ लीवर दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो हर जगह मूव करता है, एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द पॉइंटर. जहां पे भी पॉइंटर होगा उसको मूव करता है और वहीं पे वर्कआउट करता है. Whenever the stick is moved, जैसे ही जॉयस्टिक की जो सी ये वाली स्टिक है हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं. उसके बाद हमारी है टच स्क्रीन. जैसे आपके मोबाइल फोन्स हैं, आप लोग जस्ट टच करते हैं स्क्रीन को और आपके सामने रिजल्ट्स क्या होते हैं, शो हो जाता है. सो टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले screen that senses contact through human touch or by a device such as stylus. जैसे कि एक मोबाइल फोन है, आप इसके ऊपर टच करते हो उसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आप उसकी स्क्रीन पे टच करते हैं और आपके सामने क्या होते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने प्रोवाइड होते हैं. सेम दैट जब आप टैबलेट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं आप स्टाइलस के जरिए, एक पेन होता है उसके जरिए आप क्लिक करते हैं तो आपकी चीजें क्या होती हैं, क्लिक होना स्टार्ट होती हैं. द
such screen perform action based on the location of the touch on the display area. It enables us to interact directly what is display on the screen. आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो रहा है without requiring any other devices. जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है एक टच स्क्रीन आपके सामने गिवन है और देखें एक पर्सन कैसे उसको टच कर रहा है और रिजल्ट्स आपके सामने प्रोवाइड कर रहा है. Do not tap the touch screen with sharp objects. यानी ये नहीं करना कि आपने कोई चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट ले लेना है तो आपने उसके ज़रिए स्क्रीन को टच करना है. इसके लिए आप टच करना है या तो आप फिंगर के ज़रिए टच करें, अगर नहीं है तो अगर आपके पास पेन लाइक डिवाइस है, स्टाइलस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. इट्स अ डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट और इमेजेस, प्रिंटेड पेपर एंड ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. यानी आपके सामने क्या हो जाएंगे, चीज़ें स्कैन हो जाएंगी और जैसे आपकी बुक में चीज़ शो होगी या अगर हम किसी बुक का पेज को स्कैन करते हैं तो सेम एज इट इज आपको उसी पेज के एक पेज के ऊपर स्कैन किया हुआ डाटा मिल जाएगा. द डिजिटल इमेज कैन देन बी यूज्ड एंड एडिटेड बाय द डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स. डिफरेंट थिंग्स हैं वो एडिटेड हो जाती हैं आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद है बारकोड रीडर. बारकोड रीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज. बारकोड इज अ स्पेशल इमेज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. जैसे कि आपके सामने ये शो हो रही है, बारकोड इज अ स्पेशल इमेज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. A barcode is placed on an object and store data about it. यानी इसके अंदर डाटा वर्टिकल जो बार्स हैं इसके अंदर डाटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है. अक्सर आप लोग कोई भी अच्छे मार्ट से कुछ अच्छी चीज़ बाय करते हैं, ब्रांडेड थिंग्स बाय करते हैं तो आपने देखा होगा उसके बैक साइड पे बारकोड्स गिवन होते हैं. जैसे आप लोग अपनी बुक्स बाय करते हैं किसी भी स्टोर से, बुक स्टोर से, तो आप जब भी वो आपको बुक देते हैं तो उसकी प्राइस कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बारकोड्स. ये बारकोड्स गिवन है तो इससे लेजर लाइट जब इन बारकोड्स के ऊपर पड़ती है तो आपको रिजल्ट जितनी इसकी अमाउंट होती है उस बुक की वो इस बारकोड्स के अंदर क्या होती है, हाइड होती है. बारकोड्स ऑन ग्रोसरी आइटम्स, books and read and scan by the special scanners called barcode readers. Barcode readers are linked to the computer and checkout counters to the store and libraries. Libraries में जो आपकी books होती हैं उनमें भी barcodes बना हुआ होता है. They are fast and efficient. ये बहुत ज़्यादा fast है और क्या है, efficient है. Recently, scanners and software that reads barcodes have become available in other devices like such as डेस्कटॉप प्रिंटर्स यानी जो आपके घरों में प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं एंड स्मार्टफोन्स जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, सारी. द नंबर्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ बारकोड्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. यानी कि विज आपकी बुक में जो विज है वो क्या कहता है, विज सेट जो आपकी ये वर्टिकल बार नजर आ रही है, द नंबर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ बारकोड्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. आपकी प्रोडक्ट की जो भी अमाउंट होती है वो उसके बारे में आइडेंटिफाई कर देती है हमें. ठीक है, कौन हमें बता रहा है, विज बता रहा है. आपकी बुक में जो विज है वो बता रहे हैं कि द नंबर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ बारकोड्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, पेज नंबर 18, that converts image and printed text that can be added by machines. An OCR system enables us to take a book, convert it into the electronics, computers, files and add it using word processor. यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि word processor एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं कोई स्टोरी. A special scanner that use software to convert, एक ऐसा स्कैनर है that is used to the software for convert printing characters into the computer that is called optical character reader. Optical character reader. उसके बाद आपका टॉपिक है MICR reader, magnetic ink character reader. MICR reader mean magnetic ink character reader. That is a system special ink and characters. इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल इंक यूज होती है और जिससे हम क्या राइट करते हैं, कैरेक्टर्स वर्क करते हैं. टू रीड अ डॉक्यूमेंट दैट दिस इंक इज पास थ्रू अ मशीन व्हिच मैग्नेटिक्स द इंक देन द ट्रांसलेट मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन to the characters. MICR technology provides the fast, secure methods of scanning and processing information. यानी हमें सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोवाइड किया है हमें कि
कि हम उन मेथड्स को लर्न कर सकते हैं. इट इज़ यूज बाय बैंक्स. ये ज़्यादातर कहाँ यूज होते हैं? बैंक्स में यूज होते हैं. बैंक्स प्रिंट्स अकाउंट्स नंबर्स इन मैग्नेटिक ऑन द चेक्स, यानी कि जो चेक के ऊपर अमाउंट की होती है प्रिंट होती है. पेज नंबर 18. उसके बाद है स्पेशल मशीन्स कार्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन रीडर दैट इज यूज्ड टू मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स. MICR readers inform the check send it to direct to the computers. This helps to check faster, more accurately. देखिए जैसे आपकी बुक में शो है OCR गिवन है. OCR रीडर कैसे चेक कर रहे हैं और जो हम चेक दे रहे हैं बैंक में, ठीक है, और वो किस तरह वर्क कर रहा है. MICR रीडर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी जो भी उस क्या वाचर के अंदर या उस बैंक का जो भी हमारे पास चेक होगा उसके अंदर जो अमाउंट लिखे होंगे, जो पेन से लिखा होगा, वो सारा उसको क्या करेगा? स्कैन करेगा. उसके बाद है हमारी ग्राफिक्स टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट इज एन इनपुट डिवाइस. ग्राफिक्स टैबलेट इज एन आउटपुट डिवाइस. ग्राफिक्स टैबलेट इज एन आउटपुट डिवाइस. To use drawing on the computers consists of electronic tablets which is used movement of the stylus translate these signals that is sent to the computers or tablets. उसके बाद है webcam is a device that connect to the computers. आप सबके घरों में webcams पड़े होंगे that are used to record videos and send them over the internet. Webcams are also used in different applications such as games and trainings of the software. इसके बाद है माइक्रोफोन. जो आपने हेडफोन माइक्रोफोन्स लगाए होते हैं is a mic input device that is used to record and create data in the form of voice and sounds. उसके बाद हमारी टाइप है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइस में आपका है वीडियो जैसा डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर. Display output on the screen that this is known as the video display or the monitors में mediums high resolutions measured pixels. ठीक है. उसके बाद printer is an output device that enable us to print electronic documents on the paper. Printed copy is called a hard copy. जैसे आपके सामने प्रिंट हो जाती है कॉपी, वो क्या होती है? हार्ड कॉपी. और जो सी आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी. Inkjet printers are used to ink cartridge and print both colors, black and white. Laser produce output of better quality and faster speed, but it is more expensive than the inkjet printer. Inkjet printer is a type of printer. उसके बाद है plotters. प्लॉटर्स क्या होते हैं? जैसे आपके फ्लेक्स वगैरह बनते हैं डिफरेंट, तो दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज एंड डिटेल इमेज superior quality. They are used to print maps and architecture plans. Plotters are slow but can draw continuous lines often in different colors. जैसे आपके सामने ये शो है. लाइक हमने अगर कोई मैप बनाना है उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी तो हम उस पर्पज के लिए क्या होते हैं इसको यूज करते हैं. उसके बाद आपने पढ़ा था इंटरनल डिवाइस, पैरिफेरल डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल डिवाइस. उसके बाद आपने ये क्या है? दिस इज मॉनिटर एंड इट इज एन आउटपुट डिवाइस. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. माउस इज एन इनपुट डिवाइस. जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ये आपने कहाँ पे राइट करना है? ये आपने पेज नंबर 13 पे राइट करना है. पेज नंबर 13. ओके बेटा, योर होमवर्क इज लर्न प्लस राइट एक्टिविटीज ऑफ पेज नंबर 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23 प्लस विज क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 2. जितने भी आपके नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और बाकी एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो अपने क्या कहते हैं बुक पे सॉल्व करेंगे. Stay blessed. Allah Hafiz.